വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രൊവിൻഷ്യൽ സാർ മൈഗ്രൻസ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആഷിഖ്, രാഹുൽ, അതുപോലെ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ഷംസുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ്, സന്തോഷ്, സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് കേരള പ്രവിശ്യയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ഇ.പി. മാത്യുവെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള ജെസ്യൂട്ട് ബ്രാഹ്മിൻസ് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ മൈഗ്രേഷൻ വർക്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഹോളിൽ ഒരു 10-15 വർഷം മുന്നേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു യോഗത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അന്ന് ഈ മൈഗ്രൻ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ധാരാളമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് ഒരു തീരുമാനവും ചൂടായ ചർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ വളരെ നല്ലോണം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് മനസ്സാമ മലയിൽ മുൻപോട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നടന്നു. പിന്നീട് കേരളത്തിലെ ജെസ്യൂട്ട് സമൂഹത്തിന് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഷ അധികം തിരിയാത്തതിനാൽ ഫാദർ മാർട്ടിനെ കൽക്കട്ട ബ്രാഹ്മിൻസിൽ നിന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കുറേ വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവികയുടെ പോക്ക് മുന്നോട്ട് പോയത്. അതിനുശേഷം ദുർഗ ബ്രാഹ്മിൻസിൽ പത്തിയച്ചാപ്പോൾ കുറേ കാലം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. എപ്പോഴും I gave an interview to Times Saturday. I said 600 million migrants are in this country who are living in their place. They don't born. They are not born. It includes me. It includes Prime Minister Narendra Modi. I have only two people. I am migrant, or Narendra Modi is a migrant. We are equal. He is a Prime Minister. I am a Professor. That's all. I get all priority in Kerala. I can meet CM. CM can meet PM. So we are Krimidaya migrants. Like you are economically upward. You are SC, but you are economically upward. No reservation. So I said I am a great migrant because I live here 30 years. 30 years. So, but I told them 600 million people in the country are living in a place they are not born. 200 million people are living on migration only. They come to make money. 200 million people. And somebody said, how do you know? I said, I know. I am telling you. That's my word. And there is no expert can give you this number. This is my number. You want to contest against me, you write against me. 2 years over. Nobody talking about that. But now people are using my number 600. They have to talk to me, no? I will not say no data available. I am not NDA. I will tell how I have arrived this number. You want to contest me, you contest me. You write against me in the newspaper. You think it's wrong, don't call me, tell you are wrong here. You write. You give evidences, I give my evidences. You give your evidences. Like a political manifesto, I give my manifesto. You give your BJP manifesto. Congress you give manifesto. Like the election they are doing UP. The manifesto they are talking about migration, only caste religion. No my प्रोविंशियल जो यीशु समाज में केरल में जितने भी संस्थाएं हैं उन सब उनका नेतृत्व देने वाले हैं हमारे समझ लीजिए कि सबसे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति। तो उनका कहना था कि आपकी उपस्थिति हम सबों के लिए खुशी की बात है और यीशु समाज विशेष करके जो जेसुइट सोसाइटी जो केरल में जो काम कर रहे हैं हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हम सब अतिथि जो आप लोग जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं आपके प्रति आपके साथ जो काम करने के प्रति हम लोगों का समर्पण फादर ने सबके सामने प्रस्तुत किया है। और उनका कहना था कि 1970 के आसपास जो यहाँ जो फादर लोग थे पहले जो अलग अलग सामाजिक कार्य स्तर पे काम कर रहे थे उन सबों की एक नई शुरुआत के लिए भी माइग्रेंट लेबरर्स के साथ जो हमारा जो काम था उसमें भी मदद किया। फादर मार्टिन जो अभी यहाँ पर उपस्थित है उनको विशेष रूप से बुलाया गया था कलकत्ता से इस प्रकार के काम में आप सबों को साथ देने के लिए। और आखिरी फादर का ये भी कहना था कि अभी जो सामाजिक परिवेश जिसमें हम लोग हैं जो राजनीतिक परिवेश है नंबर भी नहीं है सब अक्षर भी अभी अक्षर भी हमारे साथ है 3 अक्षर भी हमारे साथ है अभी से माइग्रेंट का जो अभी
हमारे लिए अच्छा है और हम आगे चलने के लिए भी हम आपको साथ देंगे और दूसरे लोग को भी बोलेंगे आपको साथ देने के लिए, सब एक साथ में चलने के लिए। और हम तो इधर आया था कुछ बनने के लिए, हम छोटा से हम इधर ही है, हम पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई करने के लिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास मनी नहीं था, पैसा नहीं था, घर भी नहीं था। हम अभी घर भीतर काम करके घर बनाया, सब कुछ बनाया, हमारा सिस्टर को शादी भी दे दिया, सब लोग को ये कर दिया, सब अब बहुत अच्छा है, जमीन खरीद करके घर भी बना के अच्छे से दे रहा है। आगे चल के बोलता है या हमारा ये केरला में एक ही समस्या, अभी हॉस्पिटल में जाएगा तो हमारा भाषा हम जानता है तो दूसरा आदमी नहीं जानता, तो उसको लेके जाता है तो पेट में दर्द करता है तो क्या बोले उधर, हम जाकर बोलता है पेट में दर्द है, उसको मालूम नहीं है, वो किसका गुलिएगा देता है, वो दवाई देता है, खा के क्या क्या हो जाता है, फिर हम घर जाता है तो फिर बिगड़ जाता है वो। फिर कोई जगह में कोई आदमी, हमारा आदमी, हमारा गांव का आदमी, कोई आदमी ऐसा होगा, सब गांव में ऐसा होगा, एक आदमी खराब है, लपटा करने वाला है, एक आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही साथ में एक आदमी खराब है और एक आदमी बहुत अच्छा है, एक ही साथ में दोनों आदमी एक ही जगह में खड़ा है, वो खराब आदमी एक आदमी को गाली दिया, नहीं तो कुछ मारा, कुछ झगड़ा किया। यहाँ कहा गया कि आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, आपको वापस जाना है, तो फिर हमारे पास तो कोई आसरा नहीं था और वो तो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए, पुलिस वाले हमको ऐसे इस तरह से धमका रहे थे कि तुम अपने गांव में वापस जाओ। तो फिर हमने फिर ये जो है संस्थान, उनका नंबर था तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर फ़ोन के जरिए से बात करके फिर हमारे लिए क्वारंटाइन का इंतजाम किया, तो हमने क्वारंटाइन किया। फिर इसी तरह जब मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ पर बोला गया कि आपको वहाँ पर जाकर क्वारंटाइन करना है, तो जब मैं वहाँ पर गया रूम में, अपना जहाँ रूम में वहाँ क्वारंटाइन करने के लिए गया, तो वहाँ पर एक मुसीबत और आ गई कि जितने भी पड़ोसी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि आप यहाँ पर मतलब नहीं रह सकते, क्वारंटाइन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे वहाँ से स्टेशन से कहा गया है कि आपको अपने जहाँ पर मकाम है वहाँ पर जाकर आपको रहना है, वहाँ क्वारंटाइन करना है। तो फिर मैंने फिर से सिस्टर बेसिस से कांटेक्ट किया कि मेरे को यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करूँ। तो उन्होंने फिर अल्फोंसा मैडम से कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर फ़ोन के जरिए से वहाँ की पंचायत को बोलकर फिर मेरे लिए वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल कराया, तब जाके मैंने वहाँ पर क्वारंटाइन किया। फिर इसी तरह से तो कुछ दिन काम करने के बाद क्वारंटाइन के दरमियान ही मेरा एक्सीडेंट हो गया यहीं पर। तो एक्सीडेंट हो गया तब ना मैं घर जा सकता हूँ क्योंकि ट्रेन बंद था, ना ही घर से माँ बाप यहाँ पर आ सकते। तो फिर से इनका मैंने मदद लिया, इन्होंने हर तरीके से मेरा मदद की, आज तक मदद करते हैं, हर तरीके से उन्होंने मदद किया, पैसे का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वहाँ से फिर छोटा हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया मुक्का, तो वहाँ से फिर डेली वीकली यहाँ पर आना है तो कालीकट में चेकअप के लिए, तो उन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया। इसी तरह से वो लोग भी तो मजबूर थे कि वो लोग आ नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़ोन के जरिए से मेरा मदद किया, तो इसी तरह से उन्होंने मदद किया। तो मैं तो बस यही सोचता हूँ कि ईश्वर तो हर जगह जा नहीं सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको फरिश्ता बनाकर मेरे लिए सामने रख दिया है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सेवा करते हैं, ये सेवा ये लोग निस्वार्थ से सेवा करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही ये लोग धर्म देखते हैं, ना ही आदमी को देखते हैं, सिर्फ ये लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये बस सेवा करते हैं। मैं आने का बाद पारमाणा में काम करता था, उस पर मैं छोटा था, वो टाइम में मैं काम करने के लिए मुश्किल है, मेरे को काम थोड़ा मिलता नहीं था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था। उसका बाद मैं उधर काम किया, काम करने के बाद मेरा दिल में मैं सोचा कि मेरा हाथ में कैसे अच्छा काम होएगा। मैं 10th क्लास पढ़ने का टाइम में एक इंग्लिश में स्टोरी था द शेपर्ड्स डॉटर, उस पर एक स्टोरी है कि वो शेपर्ड्स डॉटर वो कैसे राजा का बेटा प्रिंस का शादी करेगा, यही बात था उस पर। इसलिए मैं सोचा कि मैं कैसे मेरा हाथ में काम करेगा, मेरा हाथ में काम करेगा तो मेरा जीवन अच्छा से जिएगा, मैं ऐसा सोचा। उसका बाद मैं ज़्यादा टाइम घूमा, मैं फर्स्ट काम किया, हमारा जो आपम बनता है छोटा छोटा आपम, वो आपम बनाने के लिए मैं गया, उस पर एक महीना में 3500 रुपया में, लेकिन उस पर मैं 2-3 महीना काम किया, लेकिन मेरे को पैसा मिला नहीं।
अंगामाली में पैसा बिराने वो टाइम में। उसका बाद मैं उधर से निकला, मैं एक बियर बार में गया, वो लिटिल फ्लावर बियर बार है, वो किधर है अभी मेरे को मालूम नहीं। उस पर काम किया, काम करने के बाद मैं सोचा कि मैं ये काम करना नहीं, ये काम करेगा तो मेरा दिल में मतलब मेरा लाइफ में होएगा नहीं, मैं इसलिए मैं ये काम छोड़ेगा। ये बात सोच के मैं फिर वापस दूसरा आदमी को कांटेक्ट करके मैं एक यूसीपी मतलब यूनाइटेड कारी पाउडर प्रोडक्ट्स अंगामाली में ये है, उसमें मैं काम किया। काम करने के बाद मेरे को उसमें पैसा दिया 120 रुपया दिया एक दिन में, 120 रुपया दिया। उस पर काम कर करके पूरा मशीनरी मतलब वो जो पाउडर करता है वो मशीन का काम मेरे को पूरा मालूम हो गया। अभी उधर 6-7 मशीन है, जो मशीन कंप्लेंट है वो मशीन में मैं जाएगा, सही करेगा, वो चलाएगा, और दूसरा जो मशीन है वो भी जाएगा, सही करेगा, चलाएगा। उधर का मैं मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद मेरे को ज़्यादा प्यार कर दिया मालिक। 5 भाई है। उसका बाद मैं सोचा कि मेरा गांव में तो ये काम नहीं है, मैं ये काम करके कैसे जिएगा, मैं ये सोचा। सोचने के बाद मैं गांव गया, गांव जाने के बाद वापस आया। मेरा घर में 6 भाई 6 बहन, टोटल 12। मैं बीच का आदमी है। अभी 2 भाई है, मेरा 2 भाई है, एक सिस्टर है। एक सिस्टर त्रिवेंद्रम है, मतलब सिस्टर होने के लिए आया। നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഇന്നേ ദിവസം അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കടക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് പല പ്രവർത്തി പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നേ ദിവസം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകിയ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അച്ഛൻ ടി. മാത്യൂസിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു.